Hello everyone. So today we will see about the factors influencing dissolution rate. It includes the different factors. First is the physicochemical properties of the drug, factors relating to drug product formulation. Third is the factor relating to processing. Then fourth is the factor relating to dissolution apparatus, and fifth is factors relating to dissolution test parameter. जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसमें क्या क्या आता है, सॉल्युबिलिटी आ गया, सॉलिड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक, उसमें हम एमाफोर्स, क्रिस्टलाइन, जैसे क्रिस्टलाइन में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और एमॉर्फोस में क्या होता है, लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर सॉल्युबिलिटी होती है, पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, देन सॉल्ट फॉर्मेशन है, सॉल्युबिलिटी, को प्रेसिपिटेशन, ये सब किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग में आता है. नेक्स्ट इज द ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन फैक्टर्स. इसमें क्या आता है, एक्सीपिएंट्स आएंगे, सारे कंपोनेंट्स, टैबलेट कैप्सूल के अंदर कौन से होते हैं एक्सीपिएंट्स, वो सारे एडिटिव्स वगैरह, डाइलुएंट, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, बाइंडर, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, दैन वाटर soluble dye, coating polymers, buffers. These all are included in formulation factors. थर्ड वन इज़ द प्रोसेसिंग फैक्टर. मीन्स इसमें प्रोसेसिंग के लिए कैसे टैबलेट बनाना है, या उसका टैबलेट का है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कंप्रेशन फोर्स, मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन, ये सारा प्रोसेसिंग फैक्टर्स है. फोर्थ इसमें देखेंगे डिसोल्यूशन एपरेटस. मीन्स एपरेटस के रिलेटेड है, जैसे एजिटेशन हो गया उसका, देन सैम्पलिंग प्रोर का पोजीशन है, फिल्टर, देन स्टरिंग एलिमेंट अलाइनमेंट. नेक्स्ट इज द फैक्टर्स रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन टेस्ट पैरामीटर. इसमें pH, टेम्परेचर, देन डिसोल्यूशन ऑफ मीडियम, देन डीएरेशन ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम, ये सारा देखा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें पहला देखते हैं द फैक्टर्स रिलेटिंग टू फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. ड्रग सॉल्युबिलिटी है इसके अंदर पहला. Solubility, as we know that solubility is the maximum amount of the solute dissolved in a solvent under the standard condition of temperature, pH, and solubility plays an important role in controlling its dissolution from dosage form, and minimum aqueous solubility of 1% is required to avoid the potential solubility limited aqueous problems, and it will going to increase the dissolution rate. As the dissolution rate increases, the solubility of the drug will also get increased. Next is the salt formation. As we know that the salt formation is generally used, it can be used to enhance the solubility. As the solubility will increase, then the dissolution rate will get increased. Then and it is the one of the most common approach for increasing the solubility of the drug, which is poorly soluble, or we can say which is having the limited solubility. Then in this, the first is phenobarbital. Example is given, that is a phenobarbital sodium salt formation, which will decreases the solubility, and in this the sodium salts dissolve faster than as compared to that of the insoluble acids. In this example is given, that is sodium and potassium salts of penicillin G, sulfa drugs, phenytoin and barbiturates. इसमें बताया फिनोबार्बिटॉन सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन डिक्रीज करता है सोल्युबिलिटी. वीक बेस्ड ड्रग स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट्स, weak based drug strong acid salt such as the hydrochloride sulfates of the weak bases, such as epinephrine and tetracycline, commonly used due to its high solubility. Then ये सब हमने सॉल्ट फॉर्म जो हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन, वही सेम इसमें हम लिख सकते हैं. और ड्रग्स आर इधर वीक एसिड और वीक बेस. टू enhance the solubility and dissolution rate, the drug is converted to the salt form. And weak basic drug, weakly basic drug, strongly acidic form salt, HCl acid. And then example in this is choline, isopropanolamine, salt of theophylline, 3 to 4 times rapidly dissolve, and it will provide the better bioavailability. Next in this is the particle size. Relation between the surface area of the drug and the dissolution rate. Then as the surface area will increases,
the higher dissolution will be achieved, and through by reducing the by reduction or reducing the particle size. More the surface area, there will be the more dissolution rate, and we know that the particle size is inversely proportional to the surface area. The surface area, as the surface area is increases, there is the more intimate contact between the solid surface and the aqueous solvent, and there will be the faster dissolution will occur. As the micronization reduces the size of particles below 0.1 microns, it will going to increase the intrinsic solubility and the dissolution rate. Therefore, it also increases the interaction with the solvent. In this example is the non-hydrophobic drugs. Then micronization of the poorly aqueous soluble drugs, like we can say example is the griseofulvin, chloramphenicol, and several salt of tetracycline. It will result in superior dissolution rate. Next is the micronization decreases dose, and it will enhances the absorption efficiency. For example, we can say griseofulvin dose is decreases to half time, and spironolactone, the dose will be decreased to 20 times. सॉलिड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म आता है. पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट व्हेन द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द polymorphism. And crystalline material, we know that it is having a strong bonding with the molecule, so it is having the higher melting point, and it will be difficult to solubilize and dissolve. So mostly जो भी drugs होते हैं वो क्या है, amorphous form में होते हैं, जिस उनकी जो melting point होता है वो कम होता है, और उनकी जो solubility होती है वो ज़्यादा होती है इसमें. और ये भी बताया कि एनहाइड्रेट्स फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, फास्टर डिजोल्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रेट फॉर्म, क्योंकि वो जो होता है एनहाइड्रेट्स वो थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं हाइड्रेट से. इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, एम्पिसिलिन एनहाइड्रेट इज फास्टर हैविंग द फास्टर डिसोल्यूशन रेट एज़ कम्पेयर टू दैट ट्राईहाइड्रेट. मेटास्टेबल जो होता है उसमें क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और फिर उसकी वजह से क्या है, हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी होगी. देन this metastable polymorph forms having the better dissolution as compared to that of the stable form. stable form में क्या होता है, ज़्यादा melting point है. ज़्यादा melting point है मतलब उसका जो aqueous solubility है वो कम है, और उसमें जो low energy state होता है. एमॉर्फोस में हमें पता है कि उसके इट इज़ नॉट हैविंग दी हैविंग नो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एज इट इज़ हैविंग दी हाई एनर्जी स्टेट, सो इट इज़ कंसिडर्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, एंड इट इज़ हैविंग दी ग्रेटर एक्वस solubility एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन. amorphous it is having the, for example in this is the novobiosine suspension and the griseofulvin. The last one is the crow precipitation. In this, the dissolution rate of the sulfathiazole could be significantly increased by co-precipitating the drug with the povidone. Second factor is the drug product formulation factors. इन दिस द फर्स्ट इज़ डाइल्यूएंट जो हम लोग कैप्सूल और टैबलेट में यूज़ करते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिसोल्यूशन रेट डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग को. इसमें हम लोग क्या है, स्टार्च जो है यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ द स्टार्च एज ए बाइंडर इन द सैलिसिलिक एसिड टैबलेट बाय ड्राई डबल कंप्रेशन प्रोसेस. इट शोज द 3 times there is increase in the dissolution rate when the starch content increases from 5 to 20%. ये जो है स्टार्च नहीं है, इट इज़ रिटन रॉन्ग देयर, द स्पेलिंग मिस्टेक इज़ देयर. सो द स्टार्च जो है पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फॉर्म करते हैं, फॉर्म दी लेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स. उसकी वजह से क्या है, इट विल इम्पार्ट द हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर टू दैट ऑफ द ग्रैन्यूल्स, एंड इट विल अल्टीमेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड इन्हांसेस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग. एग्जाम्पल इसमें बताया गया है quinazoline compound. Dissolution rate increases as the excipient drug ratio increases from 3:1 to 7:1 और 7:1 से 11:1. नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा है, डिसइंटीग्रेंट है. डिसइंटीग्रेट जो है एक तो बिफोर भी ऐड किया जाता है या आफ्टर भी ऐड किया जाता है ग्रैनुलेशन, एंड इट जनरली इट ऑल्सो अफेक्ट्स द dissolution rate of the drug.
in this the example they have given, and example in this is the phenobarbital. Example in the disintegrant agent is the microcrystalline cellulose. It is a good disintegrating agent, and the high compression force will going to retard the dissolution and retard the dissolution as well as the dissolution rate. एंड डिसइंटीग्रेट जो है जनरली जो होते हैं मोस्टली वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर में होते हैं, हाइड्रोफिलिक उनका नेचर होता है. जैसे ही जो अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स है वो लेस होगा तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी. एड्जॉर्बिंग डिसइंटीग्रेंट्स हम लोग लाइक बेंटोनाइट एंड वी गम यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि इट इज़ जनरली अवॉइडेड विद द लो डोज ड्रग्स लाइक डिगॉक्सिन एंड क्रिस्टलाइन. एंड वी नो दैट द microcrystalline is the one of the good disintegrant as well as it is a good binder also. Then phenobarbital tablet have showed that when copa gel low viscosity grade of sodium carboxymethyl cellulose added before granulation, it will going to decrease the dissolution, but if added after did not had any effect on the dissolution rate. जनरली प्रिपरेशन ऑफ द वेट ग्रेनुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तो पहले भी डाला जाता है बाद में भी डाला जाता है इसमें. नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ द बाइंडर्स एंड द ग्रेनुलेटिंग एजेंट. बाइंडर्स क्या होते हैं, दे आर जनरली बाइंडर्स जो होते हैं ना, दे आर हाइड्रोफिलिक बाइंडर्स जो होते हैं वो क्या है, इंक्रीज़ करेंगे डिसोल्यूशन रेट. पोरली वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं उनमें हाइड्रोफिलिक बाइंडर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इंक्रीज़ करता है डिसोल्यूशन रेट का. और ये जनरली क्या करते हैं, इट बाइंडर्स जनरली holds the powder together to form the granules, and it will promote the cohesive compacts for directly compressible materials and ensure that the tablet remain intact after the compression. और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइंडर जो होते हैं हाइड्रोफिलिक बाइंडर जो होते हैं मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं. एग्जांपल हम कहेंगे स्टार्च सेल्यूलर्स के डेरिवेटिव्स हो गए. और हाइड्रोफिलिक बाइंडर्स जो है बेटर डिसोल्यूशन, इट विल गोइंग टू शो द बेटर डिसोल्यूशन. एंड एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें. लार्ज अमाउंट ऑफ द बाइंडर विल गोइंग टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड डिक्रीजेज द डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन रेट ऑफ टैबलेट. नॉन एक्वेस binder, for example ethyl cellulose, it will going to retard the dissolution. Phenobarbital tablet granulated with gelatin solution provide a faster dissolution in human gastric juice than those with sodium carboxymethyl cellulose or PEG 6000 as binder. जिलेटिन जो है इम्पोर्टेड किया है, जिलेटिन इम्पोर्टेड हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर टू दी हाइड्रोफोबिक ड्रग सरफेस. एंड इसमें एक जो है PEG 6000 फॉर्म्ड ए पुअरली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. फिनोबार्बिटल का हमने एक ऊपर एग्जांपल देखा था, और इसमें नीचे वाले में क्या बताया कि अगर उसमें हम 10% जिलेटिन यूज़ करते हैं तो जो है डिसोल्यूशन जो है फास्टर होता है, और 20% जिलेटिन यूज़ करने पे वो जो है डिसोल्यूशन जो है डिक्रीज़ होता है. ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये जो है थिक फिल्म फॉर्म करता है टैबलेट के अराउंड. नेक्स्ट लुब्रिकेंट है. लुब्रिकेंट में इट इज़ जनरली हाइड्रोफोबिक इन नेचर. देन इसमें लुब्रिकेंट में हाँ सोडियम लॉरेल सल्फेट भी हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली, और ये कॉमनली हम लोग ये यूज़ करते हैं मैग्नीशियम स्टीरेट. और सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है ना वो सॉल्युबल लुब्रिकेंट है, ये जनरली प्रमोट करता है ड्रग डिसोल्यूशन. कार्बोवैक्स भी यूज़ किए जाते हैं. Then magnesium stearate will inhibit the penetration and wettability, and it will minimize the wetting of the fluid. Concentration also plays an important role, it will also affect the rate of dissolution. Amount and method also affect the dissolution rate. It should be added in small amount, 1 or less, and it generally aid in flow of the granules. Next is the surfactant.
Surfactant may enhance or retard the drug absorption by interacting with drugs or the membrane. Mechanism is that it will going to increase the wettability. इसमें क्या होता है ना, ये जो है पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होंगे ना, उनका जो है डिसोल्यूशन रेट जो है बढ़ाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है लो इंटरफेशियल टेंशन होता है और वो इंक्रीज़ करता है इफेक्टिव सरफेस एरिया, एंड उसमें इसकी वजह से उसका जो है फास्ट डिसोल्यूशन रेट होता है. एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट लाइक पॉलीसॉर्बेट 80 इंक्रीजेज द डिसोल्यूशन रेट ऑफ फेनासिटाइन ग्रैन्यूल्स. नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल डाई. इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन रेट of single crystal of sulfathiazole found decreases significantly in the presence of FD and C blue number 1. केटायनिक डाइज जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी एनायनिक, क्योंकि उसके अंदर जो है इन दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे केटायनिक डाइज जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं. नेक्स्ट है कोटिंग पॉलीमर्स. कोटिंग पॉलीमर्स में क्या है, टैबलेट विद दी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलर कोटिंग वर फाउंड टू एग्जिबिट लो डिसोल्यूशन रेट देन दोज विद दी HPMC, दैट इज HPMC, एंड इट विल प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम सर्टेन एनवायरनमेंट. इंट्रोडिक कोटिंग में क्या होता है, लेस डिसोल्यूशन होता है. सबसे फास्ट जो होता है फिल्म कोटिंग में होता है, फिर शुगर कोटिंग, फिर एंट्रिक कोटिंग में होता है. देन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमने देखे ये जो है अल्टर करेगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या अल्टर कर सकता है, स्टेबिलिटी, सोल्युबिलिटी, मॉलिकुलर साइज, पार्टीशन कोएफिशिएंट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट. इट ऑल्सो enhances dissolution through formation of soluble complex, like example is the ergotamine tartarate caffeine complex and hydroquinone digoxin complex. Next is the buffer. Buffers are it is useful in creating right atmosphere for the drug dissolution, as was observed for buffered aspirin tablet. However, certain buffer system contain potassium cations inhibits drug absorption, as seen with vitamin B2 and sulfanilamide. As we know that the buffer plays an important role. Then next is the प्रोसेसिंग फैक्टर्स. इट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन. इसमें क्या होता है, जो पोअरली सॉल्युबल ड्रग्स होता है, ग्रैनुलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें पोअरली सॉल्युबल ड्रग्स का जो उनमें जो ग्रैनुलेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इन्हांस कर देता है डिसोल्यूशन रेट को. अगर हम देन वेट ग्रैनुलेशन जो होता है वो कंसिडर किया, वेट ग्रैनुलेशन इज़ कंसिडर एज सुपीरियर. इसमें एक एक्सेप्शन बताया कि सोडियम सैलिसिलेट टैबलेट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय बोथ, दैट इज़ द वेट ग्रैनुलेशन एज वेल एज बाय द डायरेक्ट कंप्रेशन. देन ग्रैनुलेशन प्रोसेस इन जनरल इन्हांसेस दी. जनरली ये जो है पोअरली सॉल्युबल ड्रग का जो है ग्रैनुलेशन प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ करता है वे. और फिर हमने एक्सेप्शन देखा, और ये जो है डिसोल्यूशन, और इसमें हमने देखा कि सोडियम सैलिसिलेट टैबलेट का एग्जांपल देखा था, वो जो है डिसोल्यूशन जो है इसमें मोर मतलब इट वाज फाउंड टू बी मोर कंप्लीट एंड रैपिड इन द लेटर केस. एंड इसमें एक न्यूअर टेक्नोलॉजी दैट इज़ APOC विच इज़ ए agglomerative phase of comminution was found to produce mechanical stronger tablets with higher dissolution rate than those by wet granulation. A possible mechanism is increased internal surface area of granules produced by APOC method. सेकेंड इसमें है कंप्रेशन फोर्स. कंप्रेशन फोर्स जो है इन्फ्लुएंस करेगा डेंसिटी, पोरोसिटी, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन ऑफ द टैबलेट. इसमें दो कंडीशन है. पहले कंडीशन में अगर HCF हाई कंप्रेशन फोर्स होगा तो वो इंक्रीज़ करेगा डेंसिटी एंड हार्डनेस ऑफ द टैबलेट, और वो डिक्रीज़ कर देगा पोरोसिटी. हैंस द पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द टैबलेट विल गोइंग टू रिटार्ड द वेटेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए firmer then and more effective sealing layer by the lubricant. And in many cases tight bonding between the particle will going to decreases the dissolution rate of the tablet. Second condition in this is the
high compression force, it will causes a deformation, crushing or fracture of the drug particles into the smaller ones, and converting the, or we can say converting the spherical granules into the disco shaped particles with a large increase in the effective surface area, and it will ultimately, so it will going to increase the dissolution rate. In short, the dissolution rate, in short, the dissolution decreases at the low pressure, and it will increases at high pressure, and again, and decreases again, and further it will increases in pressure, decreases again with further increase in pressure because of the extra bonding and formation of denser tablet with poor dissolution characteristics. नेक्स्ट इसमें यूनिट ऑपरेशन में हम देखते हैं यूनिट ऑपरेशन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। यूनिट ऑपरेशन में हम देखते हैं मिक्सिंग होता है, मिलिंग होता है, ब्लेंडिंग, ड्राइंग, ग्रैनुलेटिंग, देन these interaction occur during any operation may result in change in the dissolution. इसमें क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ प्रेडनिसोलोन जो कि एक स्टेरॉइड है, इट फाउंड टू डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मिक्सिंग टाइम विद द मैग्नीशियम स्टेरॉइड, सिमिलर as in case as in mixing time of formulation containing 97 to 99% microcrystalline cellulose or another swelling disintegrant result in increase in the डिसोल्यूशन रेट। और इसमें पॉलीसॉर्बेट जो है जो कि यूज़ किया जाता है एक्सिपिएंट की तरह, इट इज़ यूज एज एक्सिपिएंट इन दी कैप्सूल्स विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ formaldehyde by autooxidation, which causes film formation by denaturating the inner surface of the capsule, and it will ultimately this result in decrease in the dissolution rate of the capsule. फोर्थ जो है फैक्टर्स रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन एपरेट, इसमें क्या होता है, एजिटेशन होता है। रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द एजिटेशन एंड द रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू दी कौन से टाइप का हम लोग एजिटेशन यूज़ करें, द टाइप ऑफ द एजिटेशन यूज एंड द डिग्री ऑफ द लेमिनार फ्लो और द टर्ब्यूलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो जो होता है एक ही डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट पाथ होता है, वो पैरेलल फ्लो होता है। टर्बुलेंट मीन्स इरेगुलर फ्लूइड का मूवमेंट होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। एंड ये जनरली शेप डिज़ाइन स्टरर एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग इस पर डिपेंड करता है। Speed of the agitation generates a flow that continuously changes the liquid solid interface between solvent and the drug, and in order to prevent turbulence and sustain a reproducible laminar flow is essential, and for obtaining the reliable result, and the agitation should be maintained at a relatively low rate, and जनरली रिलेटिवली लो एजिटेशन शुड बी अप्लाइड। बास्केट मेथड में कितना होता है, 100 RPM होता है, एंड पैडल मेथड में 50 to 75 RPM होता है। स्टरिंग एलिमेंट अलाइनमेंट, इसमें क्या होता है, द USP NF, USP इज़ यूनाइटेड, ही रॉन्ग है थोड़ा, USP एंड NF दैट इज़ ए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एंड द नेशनल फार्मूला है 2015 states that the axis of stirring element must not deviate more than 0.2 mm from the axis of the dissolution vessel, which defines centering of stirring shaft to within 2 +- 2 mm। मतलब इसमें बताया कि ये डेविएट नहीं होना चाहिए मोर देन 0.2 mm से। और स्टडीज़ एंड इसमें और एक बताया कि जो स्टडीज़ इंडिकेट दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिसोल्यूशन रेट अप टू 13% dissolution rate occurs if the shaft is offset to 6 mm from the center axis of the flask. Sampling probe position and filter. The sample probe can affect the hydrodynamic of the system, and so that change in dissolution rate. For position of the sampling, USP NFF states that sample should be removed approximately half the distance from the basket or paddle to the dissolution medium, and not closer than 1 centimeter to the side of the flask.
filter material must be saturated with the drug by repeated passage to avoid the losses. Accumulation of the particulate matter on the surface may causes the significant error in the dissolution testing. नेक्स्ट इसमें है फैक्टर्स रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन टेस्ट पैरामीटर्स. इसमें जो है टेम्परेचर अफेक्ट करता है. जनरली जो है इसमें 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री जो है ये इतना डिसोल्यूशन इतना टेम्परेचर जो है हम लोग ओरल डोजेज फॉर्म और सपोजिटरी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग डिसोल्यूशन के लिए. और जो टॉपिकल प्रिपरेशन होता है उसके लिए हम लोग टेम्परेचर एज लो एज 30 एंड 25 डिग्री यूज़ करते हैं. और वी नो दैट ड्रग सोल्युबिलिटी इज जनरली affected by the temperature. So therefore we can say that careful temperature control during the dissolution process is important. डिसोल्यूशन मीडियम में जनरली ये जो है अल्टर किए जाते हैं बाय डिफरेंट फैक्टर्स. फर्स्ट इन दिस इज दी और वी कैन से इट इज़ जनरली अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. पहला जो है इसमें पीएच. वीक एसिड में क्या होता है, जैसे ही डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ होगा, जैसे पीएच इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका डिसोल्यूशन रेट भी इंक्रीज़ होगा. और वीक बेसिस में कैसे होता है, अगर पीएच डिक्रीज़ हो रहा है तो डिसोल्यूशन रेट जो है इंक्रीज़ होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे हम लोग. वॉल्यूम ऑफ द डिसोल्यूशन medium and sink condition. If the drug is poorly soluble, a relatively large amount of fluid should be used. If complete dissolution is required, in order to minimize the effect of concentration gradient and maintain sink condition, the concentration of the drug should not exceed 10 to 15% of its maximum solubility in dissolution medium selected. मतलब इसमें अगर हमें ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिनिमाइज़ करना और सिंक कंडीशन मेंटेन करनी है तो उसका जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है उसके एक्सीड नहीं होना चाहिए 10 to 15% ऑफ इट्स मैक्सिमम सोलिबिलिटी इन दी जो भी हम लोग डिसोल्यूशन मीडियम ले रहे हो सिलेक्ट किया उसके अंदर. फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग अबाउट 1 लीटर इज़ मोर देन सफिशिएंट टू मेंटेन. 1 लीटर से फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग अबाउट 1 लीटर इज़ मोर देन, मतलब 1 लीटर जो होता है सफिशेंट होता है सिंक कंडीशन मेंटेन करने के लिए मोस्ट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए. हावेवर सम इनसॉल्युबल ड्रग्स present as to handling of a huge volume of dissolution medium that would be required to maintain the sink condition. For this there are the different approaches have been tried, like we can say there is the use of the non-ionic surfactant in concentration above CMC, then use of alcoholic solution 10 to 30%, then continuous flow method where fresh solvent is pumped continuously into dissolution flask at a fixed flow rate while maintaining a constant volume. नेक्स्ट है डीएरेशन. मतलब क्या होता है, इसमें एयर बबल्स वगैरह रिमूव करने का होता है. डीएरेशन ऑफ द डिसोल्यूशन मीडियम मतलब डिजोल्व एयर जो होती है वाटर के अंदर वो जो है अल्टर करती है पीएच को. देखते हैं इसमें डिजोल्व एयर इन द डिस्टिल वाटर कुड सिग्निफिकेंटली लोअर इट्स pH and consequently affect the dissolution rate of the drug that are sensitive to pH changes and weak acids. Another effect is to be released from the medium in the form of tiny air bubbles. These bubbles will be collected at the surface of the dosage form and it will act as a hydrophobic barrier between the solvent and the solid surface, and it will ultimately inhibit the wetting and the reduction of the surface area will take place, and the surface area will be reduced and the dissolution will get will also get reduced. This is all about the factors influencing the dissolution rate. Thank you.